and especially the people who are matching with my vision, staying like sitting at the back. We call it the graduates from Backbenchers Association. I want these guys to please listen to me very carefully because you are future millionaires. I can assure that. Do you guys think there is shortage of jobs in India? What do you guys feel about this? Anyone? Do you guys feel? Ma'am is saying yes. How many of you agree that there is shortage of jobs in India? Yes, of course, yes. Because I don't feel the same. Hands, 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 hands. How many? 1, 2, 3. That's it. That's it. शॉर्टेज नहीं है. किसको लगता है शॉर्टेज नहीं है? ना जो शॉर्टेज नहीं है यार, कुछ लोग तो मतलब बीच में ही है, उन्हें पता ही नहीं है कि है कि नहीं है, कहाँ खड़ा करना है. माय गॉड, है कि नहीं है? देखो मैं बोलता हूँ नहीं है, कैसे वो मैं बताऊंगा एंड में. Is there anybody in the house who can tell me that I have taken this particular subject and there is a proper specific reason, and that is passion? How many of you follow that? How many of you follow the word passion? Again, see, passion is something which I should be more excited, yaar. I do business out of my passion. I left the job 70,000 in 2016. I left the job and came into business zero. So that is passion. कितने लोग हैं जो passionate है? Raise your hands. So do you want to guys become successful? Yeah. This was not a passionate successful. Successful means yes. How many of you guys are passionate, want to become successful? Yes or no? Yes. Problem ये है कि we are studying just because we are forced to study. हम स्कूल आते हैं, कॉलेज आते हैं क्योंकि अटेंडेंस पूरी करनी है, राइट? अभी भी मैं मैम को देख रहा था, मैम अटेंडेंस शीट कहाँ है? 3-4 बार मैंने अटेंडेंस सुना, तो आई रियलाइज कि व्हेन आई वाज स्टूडेंट अटेंडेंस वाज नॉट अ वेरी बिग प्रॉब्लम, बट अब अटेंडेंस इज एवरीथिंग. तो क्या है, अब हमारा मेन एजेंडा क्या है? अटेंडेंस. मेजॉरिटी ऑफ अस, जैसे कि मैंने अभी कुछ से पूछा, इफ आई आस्क इंडिविजुअली लाइक फ्रॉम एवरीबडी कि आपने क्यों ये कोर्स किया, क्या रीज़न था, तो मुझे लगता है हाय मैम, मेजॉरिटी ऑफ द यू गाइज डोंट नो, है ना? किस किस को पता है एग्जैक्टली? एक बार दोबारा मैं देखना चाहता हूँ वो हाथ जिनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं लाइफ में. बहुत कम लोग हैं. 1 2 3 4 5 परफेक्ट. आई थिंक हार्डली देर आर 20 पीपल इन द हाउस. 20-25. आई काउंटेड स्ट्रेंथ, इट इज मोर देन 100. लाइक टुडे वी आर मोर देन 100, एंड जस्ट इमेजिन ओनली 20 आर देयर हु एक्चुअली नो व्हाट देयर पैशन इज और व्हाट दे आर एक्चुअली डूइंग. तो ये किस डायरेक्शन में जा रहा है हमारा यूथ? मोदी जी कहते हैं यूथ दुनिया बढ़ाएगा, हमारा यूथ इस कंट्री को आगे लेके जाएगा. हमारा यूथ तो अटेंडेंस फिल कर रहा है ना? तो हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्यों पढ़ रहे हैं? कोई बता सकता है हम क्यों पढ़ रहे हैं? एक किसी ने बोला था कि फॉर इनकम. आई लाइक दैट गाय. वी आर स्टडिंग फॉर जॉब्स, वी आर स्टडिंग फॉर मनी, वी आर स्टडिंग फॉर ग्रोथ, वी आर स्टडिंग फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट, एंड इन context to everything we are studying to have a better personality, right? That comes with success. Agree with me? Do you guys agree with me? Yes or no? Yes or no? Yes or no? Those of you think that mental health, जो psychology के हमारे जो friends हैं, why the way they have entered into this industry, psychology में आ तो गए, but अब आगे career build कैसे करना है? So I want to show you the size or the depth or the market कि अभी कंडीशन क्या है. हाउ मेनी ऑफ यू गाइज नो अबाउट ले ऑफ्स? सो हाउ मेनी ऑफ यू गाइज नो अबाउट ले ऑफ्स? क्या होता है ले ऑफ? आज बहुत न्यूज़ में आजकल बहुत चल रहा है ले ऑफ. कितनों को पता है ले ऑफ के बारे में? एक मैम कह रही है. व्हाट इज ले ऑफ मैम? When company remove the employees basically to reduce the expenditure that company is spending basically. Great. Throw out the employees. Throw out the employees. Okay, this can be one of the word. Ma'am is better explained. Anyone from this side? Anyone? Layoffs? यार आप सब तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले हो, पता ही नहीं है ले ऑफ क्या होता है. इतना चल रहा है आजकल. ले ऑफ नहीं पता? ले ऑफ मीन्स व्हेन कंपनी रिड्यूसेस द स्ट्रेंथ ऑफ एम्प्लॉयज either to maintain financial condition of the company or they found those employees outdated skills. That is called as layoffs. कि ये बंदा मेरे यहाँ 10 साल से था, ठीक है, अब मेरे किसी काम का नहीं है, तो मैंने उसको बोल दिया थैंक यू. That is called as layoff. And this is happening in most of the startups, big startups, we can say unicorn startups. When you talk about Upgrad, you talk about Byju's, you talk about any big brand.
ओला हो गया, उबर हो गया, ऑल कंपनी। एसेंचर ने अभी लास्ट वीक 19,000 एम्प्लॉयज़ निकाले हैं, जस्ट इमेजिन 19,000। सो वेयर इज़ जॉब सिक्योरिटी? कहाँ है जॉब सिक्योरिटी? गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब वाले कितने हैं? पॉल साइंस वाले तो हैं, सारे आईएएस बनेंगे नहीं? ओके, coming back to the topic, why I am showing you these numbers, I just want you guys to focus. See, this is a clipping of news कि actually में need कितनी है mental health की, क्योंकि मेरा main being from Council India, I am a core person who's came up with a vision कि मुझे psychology में कुछ करना है इस country के लिए, है ना? अगर हर अभी आई वॉज टॉकिंग विद योर लाइक शदाब सर कि अगर हर मोबाइल फ़ोन में, हर पॉकेट में इंस्टाग्राम और फेसबुक और व्हाट्सअप हो सकता है, तो हर पॉकेट में साइकोलॉजी भी हो सकती है। हो सकती कि नहीं हो सकती? यस और नो? यस और नो? एंड वी ऑल एग्री विद दिस, इट्स अ नीड ऑफ एन आवर, राइट? ओके, सो कोई नहीं, इट्स ओके। मूविंग फॉरवर्ड विद दिस, why I want to show you these numbers, because see when we know the depth, आज आप जितने भी पढ़ाई कर रहे हो, आपको क्या पता है कि आपके मार्केट की डेप्थ कितनी है? मार्केट मीन्स आपकी इंडस्ट्री की डेप्थ कितनी है? हम सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल। सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के लिए कितनी सीट्स होती हैं? मतलब कितने लोग क्वालिफाई होते हैं? 800 मोटा मोटा 1200 पकड़ लो, 1500 ले लो, let's take it 1500. How many people prepare for that? 12 lakh, 15 lakh. Let's take जनसंख्या हमारी बहुत स्पीड से बढ़ रही है, we are growing in context to population, so let's take it 15 lakh. So 15 lakh people are fighting for 1500 seats. Justified? Not justified. Same comes with jobs. अब let's suppose I am a person from marketing industry. मेरा जो डेजिग्नेशन है दैट इज अ गाय फ्रॉम मार्केटिंग बैकग्राउंड। सो मैं क्या देखूंगा कि मार्केट में कितनी डेप्थ है, डेप्थ मतलब कितनी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, दैट इज कॉल्ड एज अंडरस्टैंडिंग द जॉब और द मार्केट साइज, राइट? सो इफ वी टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ, तो आपको क्या लगता है मेंटल हेल्थ में कितनी जॉब्स होंगी? एक छोटा सा क्वेश्चन उससे पहले, आज के टाइम पे इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? 135. एनीवन एल्स? लेटेस्ट काफ़ी स्पीड से हम ग्रो कर रहे हैं। हाउ मेनी? 135? 160 तो ज़्यादा हो गई, अभी नहीं। दैट इज वी हैव 140 करोड़, अपन लोग 140 करोड़ भाई बंधु हैं फ्रॉम दिस एंटायर नेशन, राइट? अब आप ये सोचो कि इस 140 करोड़ में कितने लोग ऐसे होंगे एज पर द रिसर्च जितनों को मेंटल हेल्थ की रिक्वायरमेंट होगी। एस्टिमेटेड किसी को 10%, 40%, 20%, 50% या सबको है 70% और 30 से 40 और 50 से 60, 80%, ओके, एवरी थर्ड पर्सन, ओके, कूल, ओके। सो एज पर द रिसर्च ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया और बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, researchers say that almost 50 to 60% people need mental health support. So this is the problem. So do you feel this is the problem? ये प्रॉब्लम हो सकती है, 50-60% लोगों को प्रॉब्लम है। 50-60 का मतलब कितना हो गया? आउट ऑफ 140 करोड़ मतलब 70 करोड़ को सपोर्ट चाहिए। नाउ द प्रॉब्लम इज इन इंडिया द पीपल हु आर गिविंग सोल्यूशन, मतलब जो काउंसलर्स हैं वो कितने हैं? दैट इज द प्रॉब्लम। कितने हैं? कोई बताएगा कितने हैं काउंसलर्स हमारे पास? मैं आगे स्लाइड में दिखाऊंगा आपको, स्कोप में है वो। हमारे पास मुश्किल से हम आज मतलब जितनी हमें नीड है हम उसके 5-10% भी नहीं है। सबने एक मूवी आई थी बीच में, वो लॉयर वाली, अक्षय कुमार की मूवी थी वो, सब मूवी सबके बारे में पता है। मूवीज़ का पूछ लो, एक्टर्स का पूछ लो, जॉब का पूछो, वो नहीं पता। देख रहे हो आयरनी, देख रहे हो कहाँ जा रहे हैं हम। ओके, सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, उस मूवी में कहा था इंडिया में लॉयर्स कम है ना, इसलिए केसेस पेंडिंग है। बट ऐसी कोई मूवी नहीं बनी अभी तक जिसमें कोई कह रहा हो कि साइकोलॉजिस्ट कम है या काउंसलर्स कम है या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स कम है। बट एक्चुअली में स्कोप इतना है कि हम अगर चाहें तो इस इंडस्ट्री में अपना करियर बहुत सक्सेसफुल बना सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देयर इज़ अ सेलिब्रिटी काउंसलर फ्रॉम मुंबई, शी इज़ डॉक्टर खन्ना।
शी इज चार्जिंग 25,000 फॉर 50-minute सेशन. 25,000 रुपये एक सेशन के, 50 मिनट के. तो सोचो उसने कितनी मेहनत करी होगी. आज के टाइम पे ऑन एन एवरेज नॉर्मल एक साइकोलॉजिस्ट अगर सेशन ले कितना चार्ज करता है? 1,000 रुपये, 1,500, 2,000, 3,000. बट इफ शी हैज़ रीच्ड देयर, तो वाई शी हैज़ रीच्ड? one point answer, anyone. Why she has reached there? Passion. हाँ? सप्लाई कम है सर, डिमांड ज़्यादा है. सप्लाई डिमांड, उसकी तो ऑडियंस ही बहुत कम है, वो तो हर किसी को सेशन देती ही नहीं है. तो आप ही बोल रहे हैं Celebrate. 50%, जब 50% के अराउंड पॉपुलेशन मेंटल हेल्थ को नीड करती है, तो एक बहुत बड़ा चंक है वो पॉपुलेशन मेंटल हेल्थ से सफ़र कर रही है. तो फिर से सप्लाई ज़्यादा है लेकिन जो काउंसलर्स हैं वो कम है, तो डिमांड. देखो इन्होंने बहुत अच्छा मतलब क्वेश्चन किया. बट बीइंग अ सेलिब्रिटी काउंसलर, शी इज़ नॉट गिविंग सेशंस टू ऑल दिस पीपल हु आर 50%, वो नहीं दे रही है उनको. प्लस नाउ इट कम्स टू फाइनेंशियल, क्या हर बंदा 25,000 रुपये देगा उसे 1 घंटे के? बट द पीपल हु आर पेइंग, वाई दे आर पेइंग, दैट इज़ वन थिंग एंड इट्स ओनली एंड ओनली स्किल. और आज के टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, हमें डिग्री चाहिए, हमें सर्टिफिकेट चाहिए, बट हम किस पे ध्यान नहीं देते? दैट इज स्किल. वी डोंट फोकस ऑन स्किल. डू यू गाइस फोकस ऑन स्किल? एक दिन में कितना घंटे आप अपनी स्किल को देते हो? एनीवन? एक दिन में कितना घंटे अपने स्किल पे काम करते हो? मतलब कि मेरी स्किल ड्राइंग है, पेंटिंग है, या मुझे ये करना आगे चल के, ये करना है, तो सिवाय असाइनमेंट प्रोजेक्ट्स के अलावा ये स्किल नहीं है. ये तो करना ही है, कोई ऑप्शन नहीं है. स्किल होता है जो आप ऑप्शनली करें, बिकॉज आई वॉन्ट टू डू इट. हाउ मेनी ऑफ यू देयर हु वॉन्ट टू डू समथिंग एंड दे डू एवरी डे? आप क्या करते हैं हर दिन? जिम जाते हैं. बहुत अच्छा. जिम जाके फिर क्या करने वाले आगे अपने लाइफ में इससे? नहीं, मैं स्किल की बात, आप सेशन में नहीं है इसका मतलब. आई एम टॉकिंग अबाउट स्किल. स्किल कितने लोग अपनी स्किल पे काम करते हैं? शूटिंग. ओके, शूटिंग कैन बी. डू यू वांट टू बिकम शूटर? आउट ऑफ इंटरेस्ट. एनीवन एल्स? Riding. What about others? Yoga. Painting. So we have gym, painting, yoga, shooting, riding, and case studies. Case studies of criminal case. So be careful of her. She is studying case studies. What about others? Yes. Acting. Great. We should clap for this actor. Actors in the house, please clap for him. We want to become an actor. I especially have a huge respect for the people who want to pursue career in arts. They want to become artist. बहुत sacrificing journey होती है, and they come up with lot of hard work, dedication, commitment, failures, rejections, right? So coming back to the point, I was showing you some analysis. So we have 30 to 40% rise in mental health illness cases in past 18 years. ये सिर्फ पिछले 18 मतलब 1.5 महीने की बात, 1.5 साल की बात है. In 1.5 years, we have increased in context to mental health 30 to 40%. Next slide, please. Nowadays, India needs 15 lakh counselors for 315 million students. मैं ये आपको क्यों दिखा रहा हूँ numbers? Next slide, please. मैं आपको ये नंबर इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि मैं आपसे ये निकलवा सकूँ आज कि इन सब प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन क्या है. देखो प्रॉब्लम तो मुझे पता है, आज अगर इस रूम में 100 लोग हैं ना, हर किसी के पास प्रॉब्लम है ना. इन माई ऑफिस ऑल्सो आई हैव 2 kind of people. One are solution givers, one are problem givers. Do you agree with this? There are some employees, they'll come and they will tell you, सर ये नहीं हो रहा. तुम उनको सोल्यूशन दो, वो उसमें भी कुछ प्रॉब्लम सोच लेंगे. सो नाउ इट इज आवर स्किल. Either we see problem or we see solution. So today in the house we will see solution, right? अब इतनी सारी प्रॉब्लम के पीछे सोल्यूशन क्या है? प्लीज नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. मोर एंड मोर स्किल्ड काउंसलर्स एंड स्टार्टअप्स, राइट? अब एक बात बताओ, स्किल कैसे आती है? कौन सी दुकान पे मिलती है, कौन से शॉप पे मिलती है, कौन सी यूनिवर्सिटी में मिलती है? प्रैक्टिस. एनीबडी फ्रॉम दैट सेकंड लास्ट बेंच, वाइट शर्ट? अरे बोल दो यार, शर्माओ मत, बोलो. स्किल कैसे आती है? हार्ड वर्क. नाइस वर्ड. स्किल कैसे आती है एनीवन?
Great. Acknowledging experience. So skills come from market itself. Market itself. Okay. We can say in one of the perspective. Anybody from the first bencher? आपका ध्यान नहीं गया मेरा. Anyone? What? How skill comes? Awareness about our surrounding. Nice answer. Next slide please. Skill आती है सिर्फ एक ही तरीके से और कोई लॉजिक नहीं है. स्किल आने का एक तरीका जो मेरे दोस्त ने बोला था, वाइट वाले ने, शर्ट में है जो, दैट इज़ हार्ड वर्क. और कोई तरीका नहीं है स्किल आने का. आप किसी भी बंदे का रिकॉर्ड उठा लो, कोई भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, कोई भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन, कोई भी सक्सेसफुल बंदे का अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखोगे, so you will find only one thing common in everybody and that is hard work. वो एक कोट्स आपने देखे होंगे इंस्टाग्राम वगैरह पे चलते हैं, हार्ड वर्क, फेल, रिपीट. एग्री विद दिस? व्हाट आर द 3 points? With me please. Hard work, hard work, one more time louder. Hard work, exactly. Hard work, fail and repeat. ये जो फेल वाला जो वर्ड है ना यहाँ पे, है ना, ये वो फेल नहीं है कि मैं एग्जाम में फेल हो गया, मैं असाइनमेंट देने में फेल हो गया, वो फेल नहीं. फेलियर इन समथिंग दैट यू आर वेरी डेडिकेटेड. आई विल टेल यू अ शॉर्ट स्टोरी. February I visited Bangalore in one of the event. So a lot of CEOs, co-founders, founders, they came there in that event. So it was an education and technology award. Luckily Council India also got education innovation award there. So I was talking with these founders and co-founders, and one major question that we were debating is recruitments. है ना, recruitments होती हैं हर कंपनी में. So I was having a word with one of the like core committee member of Reliance. So I asked him, यार एक बात बताओ, ये रिक्रूटमेंट आपके यहाँ भी प्रॉब्लम है क्या? तो वो कह रहे हैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. अब आप ये सोचो, कंपनीज में एम्प्लॉयज़ नहीं मिल रहे हैं अच्छे काम करने के लिए, और आपको लग रहा है कि जॉब्स नहीं है. तो इसका मतलब अगर वो ढूंढ रहे हैं तो जॉब तो है. अगर हम लोग को नई जॉब मिल रही है तो क्यों नहीं मिल रही है? नाउ दिस इज अ क्वेश्चन मार्क, दैट व्हाई आई फील दैट देयर इज नो जॉब. एज अ को फाउंडर आई कैन टेल यू माई पेन, एग्जैक्ट दर्द जिसे बोलते हैं ना, दैट हायरिंग द गुड टैलेंट. और आज के टाइम पे हम चेंज नहीं हुए हैं. आज के टाइम पे अगर आपको जॉब अप्लाई करना, आप क्या करोगे? क्या करोगे? जॉब अप्लाई करने के लिए क्या करोगे? यार सब अब ग्रेजुएट होने वाले हो, इतना तो सोचो. CV, रिज्यूमे, CV. एनीवन एल्स? लिंक्डइन प्रोफाइल. एनीवन एल्स? और कोई क्रिएटिव कुछ कर रहा हो? पर्सनल ब्रांडिंग. अब मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ. इस फास्ट मूविंग टाइम में ना, हमारी जो CVs हैं मोस्टली कंपनीज में वो देखी भी नहीं आती. आपने 4 पेज की CV बना दी, आपने उन्हें भेज दी. एक आप तो नहीं हो जिन्होंने CV भेजी है, आपके जैसे कम से कम 100, 150, 200 लोग हैं जिन्होंने CV भेजी होगी, है ना. आपको क्या लगता है आपकी एक 4 पेज की CV वो जो HR है वो कितनी देर देखेगा? हार्डली 2 seconds, 3 seconds. दे विल जस्ट सी द फ्रंट पेज, स्क्रैप और इन. सो इट्स ऑल लक. तुक्का लग गया तो लग गया, नहीं तो नहीं. बट अगर उसे इन होना है ना, तो इट हैज़ टू बी मोर देन CV. वॉट इज मोर देन CV? दैट इज प्रोफाइल, इंडिविजुअल सेल्फ प्रोफाइल, जिस पे हम काम नहीं करते. कितने लोग काम करते हैं? एक इन्होंने लिंक्डइन बोला तो होपफुली एक करते होंगे लिंक्डइन पे. एनीवन एल्स हु नो अबाउट लिंक्डइन? आज के टाइम पे 2 चीज़ें बहुत कॉमन हो गई कंपनीज में वाइल हायरिंग. कीप इट एज अ नोट, इन फ्यूचर ये और ज़्यादा सीरियस हो जाएंगी. वन इज लिंक्डइन प्रोफाइल एंड द अदर वन इज प्रोफाइल. अब वो CV वाला भी धीरे धीरे कल्चर जा रहा है. पहले रिज्यूमे था, फिर CV आया, एंड नाउ इट विल बी अ 1 पेजर प्रोफाइल. आपको 4 पेज की CV देने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि किसी के पास टाइम नहीं है वो पढ़ने का. दे विल जस्ट सी 1 पेज, आइदर यू आर इन और यू आउट. एंड एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर प्रेजेंटेशन, द वे यू प्रेजेंट. आप अपने आप को कैसे दिखाते हो उस एक पेज में. और द वे गूगल और माइक्रोसॉफ्ट, हाउ दे हैव स्टार्टेड वर्किंग, they have started working in context to video profiling. Have you heard about this? What is video profiling? किसने सुना ये word video profiling? No one? I'll tell you. Video profiling का मतलब है कि मैंने जो CV में लिखा,
कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, हम सब कुछ लिखते हैं. सेम थिंग यू हैव टू रिकॉर्ड ऑन द कैमरा, मेक अ शॉर्ट वीडियो of 2 or 3 minutes and send it to the recruiter. This is going to be the future of hiring. क्योंकि किसी के पास टाइम नहीं है वो पेजेस पलटने का. जिसकी वीडियो की प्रेजेंटेशन इम्पैक्टफुल हुई, दैट विल बी इन, दे विल वॉच द वीडियो, एंड व्हेन यू वॉच द वीडियो यू कैन चेक काउंसलिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, बंदा कैसे बोल रहा है. यू विल नो हाउ दैट पर्सन ओपन्स द वीडियो, मतलब स्टार्ट द वीडियो, हाउ दैट पर्सन एंड्स द वीडियो. मतलब 90% जजमेंट आपने वहीं पे कर लिया. So you will be always better than the person who is applying from the segment of CV rather than a person who is applying from video profiling. So one question on the screen, is only a certificate and degree enough? Wow. I have people with same vision of mine. Do you feel certificate and degree is enough to become successful? How many of you guys feel this? No? So what one element is missing in this to become successful? One element. Sorry? Passion? Skill? Now I can see the energy in the house. Passion, मतलब पढ़ने को मना कर दो तो बिल्कुल एनर्जी है, लेकिन ये अच्छी बात है. आप सी एवरीबडी कैन नॉट बी पैशनेट. कई लोग होते हैं ना वो बुक वॉर्म, मेरे टाइम में था. सी आई एम अ प्योर फेलियर, हक से बोलता हूँ, प्योर फेलियर हूँ. बट व्हेन आई रियलाइज्ड कि सक्सेसफुल क्या होता है लाइफ में, फिर मैंने पलट के नहीं देखा. एट द एंड ऑफ द स्लाइड आई विल शो यू वन वर्ड दैट डिफाइंस माई पर्सनैलिटी एंड आई मेड दैट वर्ड फॉर माई सेल्फ, एंड दैट इज कॉल्ड एज लाइफहॉलिक. हैव यू हर्ड अबाउट दिस वर्ड अर्लियर? Lifeaholic. Lifeaholic means the person who loves life. Loves life means loves living life, and the one who is also workaholic. तो मुझे 18 घंटे काम करवाओ, 20 घंटे काम करवाओ, आई विल बी विद सेम एनर्जी. अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ ना तो ये मेरे टीम वाले हैं, इनको मैं सोने नहीं देता हूँ रात में. बट ऐसा नहीं कि हम प्रेशर बहुत डालते हैं. इन द सेम टाइम वी एंजॉय, वी पार्टी, वी डू लॉट ऑफ फन एक्टिविटीज़. हम काम करते हैं, चैलेंजेस लेते हैं. दैट इज द ओनली रीजन व्हाई काउंसिल इंडिया इज अ 30 crore वैल्यूएशन कंपनी टुडे. नॉट बिकॉज ऑफ मी, बिकॉज ऑफ दीज गाइज. आप किसी की लिंक्डइन प्रोफाइल खोल के देखो, मेरी खोल के देखना, यू विल नो एवरीथिंग अबाउट दैट पर्सन. वो क्या लाइक करता है, क्या कमेंट डालता है, कैसे पोस्ट करता है, उसका कंटेंट लिखने का स्टाइल क्या है. यू विल गेट टू नो इन एंड आउट एवरीथिंग. उसकी प्रोफाइल क्या है, डेजिग्नेशन क्या है. when we started this domain, जो यूनिवर्सिटी वाला है, जैसे आप लोग हमें कैसे मिले, so that is also through LinkedIn, right? अब क्यों आप लोगों ने हमें बुलाया? लेट्स सपोज आज मेरी LinkedIn प्रोफाइल ऐसी होती जिसमें कुछ नहीं होता, मुझे नहीं लगता मैम बुलाती है हमें, है ना मैम? फैक्ट है कि नहीं है? तो फैक्ट यही है कि अगर आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग है ना तो आप कुछ भी कर सकते हो. अब मुझे अगर टैलेंट हंट करना है, लेट्स सपोज आई वांट टू हंट अ टैलेंट. हंट अ टैलेंट मीन्स मुझे ऐसे लोग चाहिए जो उस माइंडसेट के हों कि वो कुछ चेंज ला सकें. वो नहीं चाहिए जो कहे कि मैंने PhD कर ली, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, मेरे को इतने साल के ये करते हुए. भाई तूने जो कर लिया, तू अब क्या कर सकता है वो बता मेरे को. तुमने जो कर लिया वो कर लिया, मैंने मान लिया, हर चीज़ मान ली. सी व्हेन यू वर्क विद यंग पीपल, अब हमारे ऑफिस में मोस्टली हाईएस्ट एज का अगर कोई होगा तो आई थिंक 35-40 मैक्स, 35-40 वाले हैं. उनसे ज़्यादा सीनियर्स तो मैं खुद ही ऑफेंड फील करता हूँ काम करने में. मुझे लगता है यार मैं इसको कैसे बोलूँगा कि ये फाइल लेके आओ, ये काम करो, वो काम करो. खैर वो अपनी जगह है, उनकी जो रिस्पेक्ट है, उनका जो बलिदान है, वी कैन से द सैक्रिफाइस दैट दे हैव डन फॉर द इंडस्ट्री, दैट इज़ डिफरेंट. बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस एज में भी स्किल को बहुत पकड़ के रखते हैं, वो हवाबाजी में नहीं जाते. दे आर स्किल ओरिएंटेड. जैसे एक और छोटी सी बात बताता हूँ आपको. देर आर फाउंडर्स, को फाउंडर्स आपको सारे पागल मिलेंगे, सच बता रहा हूँ. जितने भी आप को फाउंडर से मिलोगे, अगर एक सक्सेस जर्नी तय कर चुके हैं, वो आपको आधे पागल मिलेंगे. फैक्ट है. उन्हें पहनने से मतलब नहीं है, उन्हें खाने से मतलब नहीं है, उन्हें दिखने से मतलब नहीं है, उन्हें किसी चीज़ से मतलब नहीं है, क्योंकि वो अपनी लाइफ में इतने फेल हो चुके होते हैं ना कि वो उनको लगता है फेलियर होता ही नहीं है कुछ. उनको ये भी नहीं फ़र्क पड़ता कि मुझे कोई कैसे जज कर रहा है. भाई कर ले, तेरी मर्जी है, तेरा प्रॉब्लम है. हार्डली मैटर्स. वो हार्डली मैटर वाला जो एटीट्यूड होता है ना, वो सक्सेस दिलवाता है. हार्डली मैटर्स. यू आर जजिंग ना, इट इज़ योर प्रॉब्लम, एंड इट इज़ गुड दैट यू आर जजिंग.
व्हेन वी स्टार्टेड, मैं बीच बीच में स्टोरी सुनाता हूँ ताकि आप लोग रहें, जिंदा रहें, मेरे साथ रहें ना। तो प्रोफाइल की हम बात करते हैं, वापस आएंगे इस पे। व्हेन वी स्टार्टेड दिस इन 2016, टू बी वेरी फ्रैंक, जब हम गए ना पहली विजिट पे, हमें स्कूल के गेट से भगा दिया चौकीदार ने कि तुम्हें अंदर घुसना अलाउड नहीं है। जब ढीठ बन के नहीं गए, फिर आ गए तो कुत्ता छोड़ दिया, ठीक है। बट अगर वहीं रुक जाते तो रुक जाते, फिर आज मैं यहाँ होता ही नहीं। पहला सेशन जो हमने ऑफलाइन लिया था, मैंने माइक हाथ में पकड़ के, जब मेरे हाथ कांप रहे थे बहुत, दैट वाज दिल्ली यूनिवर्सिटी यूथ विंग में। वो भी यूनिवर्सिटी ने जगह नहीं दी थी, ग्राउंड में बैठे होकर बच्चों को मैंने सेशन दिलवाया था। सो सक्सेस कम्स विद फेलियर। अगर आप फेल हो रहे हो ना, आई प्रॉमिस यू, आई बेट ऑन यू, यू विल बी सक्सेसफुल वन डे। अगर सब कुछ मस्त चल रहा है ना, मक्खन चल रही लाइफ, कुछ नहीं होगा। दैट इज जस्ट अ बलून, इल्यूजन में होता है ना, मिराज इफेक्ट, साइंस वाले जानते होंगे व्हाट इज मिराज इफेक्ट। दूर से दिखने में पानी लगता है, जाओ के देखोगे कोई पानी नहीं है। तो ये मक्खन लाइफ ऐसे तो बहुत स्मूथ लगती है, बट जब ये एक्चुअली धीरे धीरे हमारे अंदर आ जाती है ना, फिर खेल खत्म। तो हमें आज के टाइम पे एक मैसेज यहाँ से पक्का लेके जाना है कि मैं यहाँ से निकल के अपनी प्रोफाइल पे ज़रूर काम करूँगा। करोगे कि नहीं करोगे? यस और नो? करोगे कि नहीं करोगे? जो यस बोल रहे हैं, जितना अच्छा यस होगा उतना अच्छा रिजल्ट आएगा फिर। और रिजल्ट एग्ज़ाम वाला नहीं, लाइफ वाला। एग्ज़ाम से ज़्यादा मुश्किल जो चीज़ होती है ना, वो लाइफ होती है, और वो कोई कॉलेज कोई स्कूल नहीं सिखाता, याद रखना। वो खुद सीखना पड़ता है, और वो भी गिर के सीखना पड़ता है। जितना गिरोगे उतने ए बी सी आपके वो बढ़ते जाएंगे। एग्री करते हो कि नहीं? ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। तो हम आज प्रॉमिस करते हैं कि वी विल बी मेकिंग प्रोफाइल, people take what they see. I have already told. Please next please. Okay, now we'll talk about layoffs, क्योंकि to be very frank, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और ये होता क्यों है, मैं आपको इसका थोड़ा सा और डीप डाउन ले आता हूँ कि layoffs क्यों होता है। लेट्स सपोज मेरी कंपनी ने बिजनेस स्टार्ट किया इस मंथ, इस ईयर का, फाइनेंशियल ईयर का, ठीक है। हमने रिक्रूट कर लिया भाई, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ रिक्रूट कर लिए, बिकॉज आई हैव अ फंडिंग। लेट्स सपोज, वैसे तो काउंसिल इंडिया एज अ बूट स्ट्रैप, कोई फंडिंग नहीं है हमारे पास, हमने कोई फंडिंग नहीं ली। वी आर अ सेल्फ मेड कंपनी, नॉट इवन 1 रुपी लोन और नॉट इवन 1 रुपी फंडेड और इन्वेस्टर, कुछ नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। खुला अपना बिजनेस खुद करते हैं, अपने दम पे करते हैं। सो कैसे होता है। अब सपोज करो कि मैं एक इन्वेस्टर हूँ, मैंने किसी कंपनी को फंड दे दिया कि भाई तू 500 करोड़ ले ले और कंपनी चला। अब कंपनी चलाने के लिए मेरे पास पैसा तो आ गया, पैसा ही चाहिए सबसे बड़ी चीज़ तो कंपनी चलाने के लिए। मेरे पास पैसा आ गया, मैंने बहुत सारे एम्प्लॉयज़ रिक्रूट कर लिए, बिकॉज आई हैव मनी, आई कैन रिक्रूट, थिंकिंग दैट दिस इज़ अ गुड टैलेंट एंड दे विल टेक माई कंपनी इनटू प्रॉफिट्स। अब क्या हुआ कि इन्वेस्टर को भी दिखाना पड़ता है कि ये तुमने जो पैसा लिया है ना हमने, ये हम तुम्हारा इस जगह पे डाल रहे हैं। तो इन्वेस्टर को दिखाने के लिए क्या किया, हायरिंग कर ली। अब प्रॉफिट तो आया नहीं, क्योंकि स्ट्रैटेजी सही नहीं हुई, प्रोडक्ट सही नहीं हुआ, कुछ भी, देयर कैन बी 100 रीजंस कि बिजनेस नहीं हुआ। अब क्या करेंगे, इन्वेस्टर को तो भाई पैसा देना ही है, प्रॉफिट दिखाना ही है। अब इन्होंने क्या किया, सारे जो भी भीड़ इकट्ठी की हुई थी वो निकाल दी। एंड दिस इज़ द प्रॉब्लम कि हमारे यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट हर महीने बढ़ती जा रही है। इफ़ यू रीड इकोनॉमिक्स टाइम, जो कोई पढ़ते होंगे, अगर गलती से कभी नज़र पड़ जाती होगी तो आपको दिखेगा कि अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है वो हर महीने हमारा इंक्रीज़ हो रहा है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। ये एक रिपोर्ट में लेटेस्ट दिखा रहा हूँ आपको, आप कभी पढ़े ना पढ़े ये ध्यान रखिएगा। Layoffs in 2023, Accenture, Indeed, Amazon among latest firms to cut jobs amid economic turmoil. इतने बड़े बड़े ब्रांड्स लेऑफ्स कर रहे हैं, इनका पैसे की कमी है नहीं है, फिर भी लेऑफ्स कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? सेम मैंने जो एजेंडा बताया, प्रॉफिट दिखाने के लिए। क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर क्लोजर था, मार्च आ गया था, अप्रैल में नया फाइनेंशियल ईयर आ जाएगा, तो प्रॉफिट तो दिखाना ही है, बुक्स तो मेंटेन करनी है, तो क्या करेंगे, टाटा बाय बाय। लेकिन यहाँ भी एक चीज़ बताता हूँ, जो स्किल्ड पिलर्स होते हैं ना, वो नहीं जाते। आई वॉज रीडिंग वन रिपोर्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट कि अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में क्यों बढ़ रहा है। 2 रीज़न थे उसमें। पहला, अनस्किल्ड फोर्स। फर्स्ट रीज़न वॉज अनस्किल्ड फोर्स, कि लोगों में स्किल नहीं है जितनी कंपनी को चाहिए। और दूसरा, टेक्निकली हैंडीकैप्ड। आई यूज़ दिस वर्ड, टेक्निकली हैंडीकैप्ड, मतलब
इंस्टाग्राम फेसबुक के अलावा कुछ आता ही नहीं है फ़ोन में करना, या टेक्नोलॉजी में कुछ आता ही नहीं। आजकल आपने देखा होगा इतने सारे टेक कोर्सेज आ गए हैं, एआई, मतलब पीपल हैव रीच्ड, कहाँ लोग पहुँच गए हैं यार, एआई आ गया है इतना ज़्यादा। तो टेक्नोलॉजी तो बहुत वास्ट हो रही है, बहुत स्पीड से जा रही है, बट हम क्या होते हैं, हम थोड़े से रिजिड होते हैं कि मुझे यार इतना नहीं चाहिए, मेरे को जो मिल रहा है खुश हूँ मैं। सो इफ यू विल नॉट चेंज विद द चेंज, यू विल बिकम डायनासोर्स। हाउ? एक्सटिंक्ट। नाइस कैच। सो अगर आप डायनासोर्स, क्यों मजबूत थे डायनासोर्स, बहुत रिजिड थे, पावरफुल थे, उनको लगा कि उनको कुछ नहीं ख़त्म कर सकता, तो वो जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज हुआ, नेचर चेंज हुआ, उन्होंने बोला कि हम नहीं चेंज होंगे, तो क्या हुआ, दे वैनिश्ड। इन द सेम वे इन आर कंडीशन, अगर हमने अपनी स्किल्स पे काम नहीं किया, हम रिजिड रहे स्किल्स को लेके, तो वी विल ऑल्सो बी फ्यूचर डायनासोर्स। एक्सटिंक्ट मतलब जॉब एक्सटिंक्शन। एंड फिर हम क्या बोलते हैं, मेरे तो यूनिवर्सिटी ने कुछ नहीं पढ़ाया, इसने कुछ नहीं पढ़ाया, उसने कुछ नहीं पढ़ाया, इसने कुछ नहीं किया, उसने कुछ नहीं किया, देन ऑल दैट ब्लेम गेम और वो डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस सब एक साथ आ जाता है। एग्री? अगर उस सिचुएशन में नहीं जाना है तो एटलीस्ट ट्राई टू गिव टाइम एवरी डे टू इम्प्रूव योर प्रोफाइल एंड स्किल। टू थिंग्स, वन थिंग इज प्रोफाइल, बी विद मी, स्पीक विद मी, वन थिंग इज प्रोफाइल, स्किल। क्या है दो चीज़? प्रोफाइल, स्किल, दो चीज़ें हर दिन काम करनी है, दो चीज़ों पर। हम डेली, यार ये बोलना बहुत आसान है कि मैं डेली खाना खाता हूँ, सांस लेता हूँ, तो मैं कर क्यों नहीं सकता, है ना? ऐसे ही तो एग्जाम्पल देते हैं, मम्मी पापा भी ऐसे बोलते हैं, तूने आज इस पे काम किया, आपने बोला नहीं किया, तो उन्होंने बोला खाना तो खाया था ना, ये एग्जाम्पल मिलता है। लेकिन हमें ये चीज़ समझनी है कि जितना फूड इम्पॉर्टेंट है, जितना एवरीडे एक्टिविटी करना इम्पॉर्टेंट है, उतना ही स्किल पे काम करना इम्पॉर्टेंट है, ताकि आपको फ्यूचर में रोना ना पड़े। अपनी कोई एक रोती सी फ़ोटो खींच के और अपने सामने लगा लो, ताकि उसे देख के ये ध्यान रहे कि मुझे फ्यूचर में ऐसा तो नहीं बनना है। देखो, सबसे बड़ा जो वेपन है ना, दैट इज़ सेल्फ रियलाइजेशन। कोई कितना भी कुछ कर ले, कितनी भी फिलॉसफी मार ले, कितना भी ज्ञान दे ले, अगर सेल्फ रियलाइजेशन नहीं है ना, कुछ नहीं हो सकता। तो सेल्फ रियलाइजेशन करने के लिए कुछ अलग अलग एरियाज़ में हाथ डालो। आई टेल यू हाउ। नेक्स्ट प्लीज़। ये दो चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई, स्किल और टेक्नोलॉजी, दोनों हमें चाहिए। या बस हाउ टू अपस्किल ड्यूरिंग एंड आफ्टर पासिंग आउट, ये पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, दिस विल हेल्प यू कि हमें कैसे अपस्किल करना है ड्यूरिंग ग्रेजुएशन या ड्यूरिंग स्टडिंग और आफ्टर ग्रेजुएशन आफ्टर स्टडिंग। पहला पॉइंट है फर्दर स्किल कोर्सेज, कीप डूइंग, कीप हंटिंग फॉर मोर स्किल्स। आजकल पता है क्या है, पहले वो डायलॉग था कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन, वो पहले चल जाता था। अब जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स हो ना तो कभी परेशान नहीं होगे, एक में दाल निकली दूसरे में हो जाएगा, तीसरे में हो जाएगा, कहीं ना कहीं तो फिट होगा। आजकल कंपनीज में जब हायर करती है ना, दे हायर मल्टी स्किल्ड पर्सन। तो अगर ज़्यादा स्किल्स हैं तो ऑब्वियसली आपके साथ जो बंदा इंटरव्यू में बैठा हुआ है ना, उससे ज़्यादा वैल्यू आपकी होगी। लिख के ले लो, कोई नहीं रोक सकता आपको। तो नाउ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बनना बहुत ज़रूरी है, बट उसके लिए फिर उतना टाइम चाहिए। ये नहीं कि संडे है, वीकेंड है, चिल आउट करेंगे, पार्टी मारेंगे। करो, सब करो। मैं तो खुद कहता हूँ फटे तक काम करो, फटे तक एंजॉय करो। दिल में कोई ना कसक नहीं रहनी चाहिए, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। इतनी मेहनत करो ना कि मतलब लग जाए कि यार कुछ किया है, और इतना एंजॉय करो कि लगे कि हाँ अब रिफ्रेश हो गए। हम क्या करते हैं, ना तो एंजॉय दिल से करते हैं, ना मेहनत दिल से करते हैं, दोनों चीज़ें आधी आधी करते हैं। और इसीलिए हम कहते हैं यार सक्सेस बहुत डिफिकल्ट है, ये बहुत डिफिकल्ट है, वो बहुत डिफिकल्ट है। तो पार्टी हार्ड एंड वर्क हार्ड, सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में बोले तो, राइट। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट फर्दर स्किल कोर्सेज। आज के टाइम में इतने सारे स्टार्टअप्स आ गए, एडटेक कंपनीज आ गए जो आपको स्किल्स देती हैं, जैसे मार्केटिंग में, एआई में, बहुत सारे अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में आप अपने आप को अपस्किल कर सकते हो, डिज़ाइनिंग कर सकते हो। नाउ लाइक आई विल गिव यू वन स्मॉल एग्जांपल। आई हैंडल एंटायर marketing and branding of Council India, right, being a CMO, but I have not done any course. मैंने एक सर्टिफिकेशन कोर्स भी नहीं किया, बट स्क्रैच से लेके यहाँ तक बिल्ड किया। मेरे को वीडियो एडिटिंग करवा लो, डिज़ाइनिंग करवा लो, पोस्टर्स बनवा लो, कंटेंट लिखवा लो, SEO करवा लो, डिजिटल मार्केटिंग कुछ भी करवा लो, तो मैं एक सर्टिफिकेट वाला बंदा भी सामने ला के बिठा दोगे ना, उससे 4 बातें ज़्यादा ही बताऊँगा, उससे उल्टा सिखा के भेजूँगा। बट कैसे हुआ ये? एक्सप्लोर। यूट्यूब
को हम अगर सही तरीके से, अगर इंटरनेट को मैं बोलूँगा, अगर हम सही तरीके से यूज़ करें ना, तो उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। बट हम क्या करते हैं, रील्स, तो खैर सबको पता ही है आप लोग क्या करते हो सोशल मीडिया पे। बट इंटरनेट को अगर आप स्मार्टली यूज़ करो तो बहुत कुछ है। आपको अपस्किल, हर दिन आप अपस्किल हो सकते हो, हर दिन आप कुछ ना कुछ नया सीख सकते हो। नेक्स्ट इज जॉब सर्च। अभी से देखो, बहुत लोग क्या करते हैं, गलती करते हैं कि जब ग्रेजुएट हो जाऊंगा, जब जॉब ढूंढूंगा, तब देखूंगा कि कहाँ नौकरी है, तब सोचूंगा कि कहाँ नौकरी कर सकता हूँ। बट जब से आप पढ़ रहे हो ना, आप तब से काम करना स्टार्ट करो, आप तब से जॉब अप्लाई करना स्टार्ट, आप तब से इंटरव्यू देना स्टार्ट करो, आप लोगों में मिलना स्टार्ट करो, आप नेटवर्किंग में जाना स्टार्ट करो, गैदरिंग्स में जाना स्टार्ट करो, 4 नए लोगों से मिलो, उनसे बात करो, उनसे सीखो। ये लाइफ लेसन्स होते हैं, ये जो लाइफ सिखाती है। नेक्स्ट इज इंटर्नशिप, पार्ट टाइम वर्क, मैंने बता ही दिया आपको। ट्रैवल एंड एक्सप्लोर एंड वॉलंटियर वर्क। ट्रैवल एंड एक्सप्लोर सबसे बेटर फंडा, इन्जॉय भी करते हैं, मज़ा भी आता है और सीखने को भी बहुत मिलता है, जो कि हमारे अंदर मिसिंग है। अब आप बोलोगे कि यार मम्मी पापा जाने नहीं देंगे, यही तो होगा। तो उनको बताओ कि मैं किस पर्पज़ से जा रहा हूँ या कहाँ जा रहा हूँ, या जितनी स्कोप है, जहाँ तक जाने देंगे, कहीं तो जाने देंगे, वहाँ तक जाओ, एक्सप्लोर। द मोर यू एक्सप्लोर द मोर यू लर्न। मेरा तो यही फंडा है, जितना एक्सप्लोर करते जाओगे सीखते जाओगे। जो जिसको चाहिए कि मैं कमरे में बैठ जाऊँ और मेरे पास खाना आए और सब आता जाए, बढ़िया एसी चले, सो जाऊँ, उठ जाऊँ, कुछ नहीं हो सकता। दैट इज़, आप अपने लिए बोलते हैं ना हिंदी में, खुद के लिए कब्र खोद रहे हैं, वो है। नेक्स्ट प्लीज, हाउ टू अर्न मनी एंड गेट अ सिक्योर जॉब। लास्ट पॉइंट ऑफ माई स्लाइड। नेक्स्ट प्लीज, डेवलप इन डिमांड स्किल्स। आज के टाइम में नीड क्या है? अच्छा एक बात पूछता हूँ आपसे, अभी के टाइम में कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जो सुपर बूमिंग है, जो बहुत चल रही है? डेटा साइंस, गुड। डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सब जानते हो इसके बारे में, सबने सुना भी होगा, है ना। ये ऐसी जो नई नई इंडस्ट्रीज आती है ना, ऐसी नई नई स्किल्स ऐड करते जाओ। अगर आप एक डेटा साइंस मशीन लर्निंग का नॉर्मल सिंपल सर्टिफिकेशन भी करते हो, 5-10 हज़ार 15 हज़ार में हो जाएगा, आपको बेसिक नॉलेज आ रहेगी। उसके बाद फिर आप धीरे धीरे शॉर्ट टर्म कोर्सेज करके सीख सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग बहुत बर्निंग इंडस्ट्री है, हर बंदे को चाहिए, आपको खुद के लिए भी चाहिए, सच बताओ तो। उसको तो अगर आप कोर्सेरा, यूडीमी पे देखोगे तो और सिंपल और सस्ते में कोर्सेज है, 500 रुपये 1000 रुपये में कोर्सेज है। 500 रुपये 1000 रुपये में पिज़्ज़ा नहीं आता यार, बट आपको वहाँ पे एक स्किल मिल रही है जिस 500-1000 से आप लाखों मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये स्किल पे काम करना ज़रूरी है। बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग नेटवर्क, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, लोग चाहिए। नेटवर्क में सिर्फ दोस्त नहीं आते, नेटवर्क में लाइक माइंडेड पीपल आते हैं, स्किल्ड पीपल आते हैं। अगर किसी के पास स्किल है, जोड़ो उसे। जैसे कि लिंक्डइन इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल। एक और मैं प्लेटफॉर्म बताता हूँ जहाँ पे आपको अच्छे लोग मिलते हैं, दैट इज़ कॉफ़ी मग, यू कैन राइट इट डाउन। कॉफ़ी मग एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ भी आपको फाउंडर्स को उनसे डायरेक्ट बात करने का मौका मिलता है। सीधा कॉल बुक करो और बात करो, कॉफ़ी मग। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट इज कंसिडर फ्रीलांस वर्क। जब तक आपको लगता है कि मेरी ग्रेजुएशन पूरी नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, फ्रीलांसिंग करते रहो। एक दिन में 2 घंटा 3 घंटा जितना टाइम मिलता है, वीकेंड्स पे टाइम मिलता है। आई हैव सीन पीपल हु ऑन वीकेंड्स दे डू फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग से हमें एक्सपोजर मिलता है, लर्निंग मिलती है, और सबसे इंपॉर्टेंट पैसा तो खैर मिलता ही मिलता है, राइट। देन वी हैव बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग रिज्यूमे एंड कवर लेटर, जो मैंने कि आज के सेशन में आपको बताया, प्रोफाइल, कवर लेटर कितना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, बी ओपन टू अपॉर्चुनिटीज़। एक रिचर्ड ब्रांसन का कोट है कि व्हेन यू गेट एनी अपॉर्चुनिटी and you don't know about it, when you get any opportunity and you don't know about it, still take that opportunity. You can take it and learn it rather than leaving the opportunity. आप ले लो उसे और बाद में सीख लो। तो इतना ओपन रहना पर, ये नहीं कि यार मैं तो इस फील्ड का हूँ, मैं तो कैसे करूँगा। हर बंदा सब कुछ कर सकता है, हर पोटेंशियल इंटेलिजेंस है। आप सब जानते हैं एक कि हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है कितने % काम करता है वो, मतलब पहले तो बहुत ज़्यादा होता था, अब तो हमारा साइज़ भी श्रिंक हो रहा है धीरे धीरे ब्रेन का, हमारी इंटेलिजेंस भी श्रिंक हो रही है। तो आज के टाइम पे एवरेजली 1.5 to 2% हमारा ह्यूमन ब्रेन काम करता है। तो एनर्जी बहुत है, इंटेलिजेंस बहुत है,
बट सही जगह पे चैनलाइज करने की ज़रूरत है. दैट्स वाई आई टोल्ड यू बी ओपन टू ऑल काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज. जितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी उतने ज़्यादा लेते जाएंगे आप अपॉर्चुनिटीज़, उतना ज़्यादा आप सीखते जाएंगे. कंसिडर एडिशनल एजुकेशन और सर्टिफिकेशन. कभी भी जैसे कि फर्स्ट मैंने बताया था स्किल, तो अपने सर्टिफिकेशंस को, स्किल्स को ऐड करते रहो, ऐड करते रहो. आपको सीखने को मिलेगा, प्रोफाइल स्ट्रांग होगी, आप बहुत ज़्यादा लोगों के नेटवर्क में ओपन हो जाएंगे. राइट. नेक्स्ट, stay informed about job market. I already told you. Then always keep growth mindset and not just money focus. कहते हैं ना पैसे के पीछे खाली मत भागो, स्किल के पीछे भागो. आमिर खान का एक डायलॉग था, कोई बता सकता है 3 Idiots से, इससे जुड़ता हुआ, काबिल वाबिल से कुछ जुड़ता हुआ, कोई बता सकता है? एनीवन? अरे बोलो बोलो. सक्सेस के पीछे मत भागो, सक्सेस ऐसा काम करो सक्सेस तुम्हें चल पाओगे पीछे. सक्सेस के पीछे मत भागो, ऐसा काम करो कि सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे है. काबिल बनो, कामयाबी झक मार के तुम्हारे पीछे है. कामयाबी झक मार के पीछे आएगी. तो काबिल बनने में फोकस करना है. और काबिल कैसे बनेंगे? ऑलवेज कीप अ ग्रोथ माइंडसेट एंड नॉट जस्ट अ मनी. ये नहीं सोचना है कि यार ये कर लूँगा तो पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये कर लूँगा तो पैसा मिलेगा नहीं. ग्रोथ तो मिलेगी, कुछ सीखने को तो मिलेगा. एल्वा एडिसन ने कहा था कि मैंने जितनी बार बल्ब बनाया फेल हो गया. फॉर मी इट्स नॉट अ फेलियर, इट्स अ लेसन. अगर वो सोचता कि मैं फेल हो रहा हूँ, ये फेलियर है, तो वो डिप्रेशन में मर जाता. कितनी बार फेल हुआ, बट दैट वॉज अ लेसन फॉर दैट पर्सन, नॉट अ फेलियर. तो आप जितने ज़्यादा अपने आप को अपॉर्चुनिटीज से एक्सपोज करोगे, ग्रोथ माइंडसेट में जाओगे, ग्रोथ के बारे में सोचोगे, वैसा आपका माइंडसेट होगा. आप ये सोचो कि आप जब दोस्तों में बैठ के बात करते हो ना, तो क्या बात करते हो? कितनी टाइम आप ग्रोथ की बात करते हो, कितनी टाइम आप स्किल की बात करते हो? अगर बॉयज़ हैं तो बॉयज़ टॉक अलग है, गर्ल्स की गर्ल्स टॉक अलग है ना. बट ग्रोथ टॉक कितने लोग करते हैं? कौन बंदा अपने दोस्त को रोक के बोलता है कि यार तूने कुछ सोचा लाइफ के बारे में, तूने कुछ सोचा स्किल के बारे में? क्यों? क्योंकि हमारा माइंडसेट ही नहीं है वैसा. ना माइंडसेट है, ना हम वैसा करना चाहते हैं. हमें लगता है सब मक्खन चल रहा है, चलते हैं, पैसे आ ही जाते हैं, पेरेंट्स दे ही देते हैं, तो इतना हम टेंशन भी नहीं लेते. लेकिन टेंशन ना लेके आप अपना फ्यूचर स्पॉइल कर देते तरीके से. टेंशन लेनी चाहिए, कुछ कुछ चीज़ों की टेंशन लेना ज़रूरी होता है, उसी से ग्रोथ मिलती है. नेक्स्ट प्लीज. सो हेयर आई एंड विथ ग्रोथ ग्राफ. आई होप यू गाइज गॉट फ्यू थिंग्स. A lot. Okay. How, like, anyone want to share something? What did you guys learn from the session, today's session? Anyone? इतनी सारी चीज़ें मैंने बताई. I know it was a long marathon, but छोटी छोटी sprints. Anyone would want to say something? Volunteer. Importance of having a great profile and skill sets are important basically in order to frame that profile. That is in a nutshell that we have discovered today. Perfectly. Wish you all the best for your career, and I hope you guys enjoy the session.